کیا آج کا پاکستان ان کی ویژن کے مطابق ہے؟ اس پہ ہمیں فخر سے سر اونچا کرنا چاہیے یا ہمارے سر شرم سے جھکنا چاہیے؟ تو یہ دو چیزیں بھی ضرور میں آؤں گا، لیکن تھوڑا سا پہلے بتا چکا ہوں کہ تاریخ کا استاد ہوں تو تاریخ کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ہندوستان اپنی ایک اکائی تھی، اپنی ایک آئیڈینٹی تھی اس کی، سارے ملکوں کے ساتھ، کوسٹل ایریا کے ساتھ تجارت بہت زمانوں سے تھی۔ قرآن شریف کا سورت القریش جو ہے اس میں آپ کو اس کا اشارہ ملتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ جاڑے میں اور گرمیوں میں یہ لوگ کہاں کہاں کا سفر کرتے تھے۔ تو جو کوسٹل ایریاز ہیں، مالابار وغیرہ، ان سب کا یمن اور ان ملکوں کے ساتھ کافی روابط اسلام لانے سے بہت عرصہ پہلے سے چل رہے تھے۔ اسلام آیا، اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹیلی ویژن اور ریڈیو نہیں تھا، تو جو جہاز آتے تھے تجارت کے لیے وہی اس قسم کی خبریں لاتے تھے۔ وہ آئے، ان میں سے کچھ تاجر آئے، ایک چینج آئی تھی عرب میں، اس چینج کی خبر یہاں آ گئی اور کچھ لوگ بلا دے کے مسلمان ہو گئے۔ بہت شروع سے اسلام جب سعودی عرب، جب حجاز میں پھیل رہا تھا تو اس وقت مالابار میں بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر باقاعدہ طور پہ سب سے بڑا جو مسلم ویو آف کانکیسٹ آپ دیکھتے ہیں بنو امیہ کے عہد میں ہے۔ 3 مختلف قسم کی آپ کو دائرے نظر آتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر یورپ اندلس کی طرف گیا، قتیبہ بن مسلم باہلی سینٹرل ایشیا، وسط ایشیا کی طرف آیا، محمد بن قاسم ہندوستان کی طرف آیا۔ یہ لہر جو تھی بہت عرصے تک نہیں چل سکی، تلوار کے تھرو آئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ کانکیسٹ کا ویو آف کانکیسٹ تھی جو چل رہی تھی، ملتان تک پہنچ پائی، منصورہ اور ملتان تک۔ باہمی اختلافات مسلمانوں کے بنو امیہ دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی بیسک وجہ تھی، یہی وجہ تھی کہ انگریزوں نے سکھ ٹائرینیکل رول سے مسلمانوں کو نجات دلوائی۔ سکھوں کے وقت میں اور تو اور جامع مسجد میں استبل بن گیا تھا ان کے گھوڑوں کے لیے، تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے وہ بڑا پریشان وقت تھا، اور اسی لیے 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے جو ریپڈ فورس تھی، اس وقت کی ریپڈ فورس دیٹ واز نون ایز ملتانی ریجمنٹ، ملتانی ریجمنٹ گئی اور انہوں نے 2 جگہ ان کو ریسکیو کیا، لکھنؤ اور دہلی۔ تو اسی لیے جب انگریز یہاں حکمران کی حیثیت سے آیا تو ان کو یہی لگا کہ ان مسلمانوں نے، پنجاب کے مسلمانوں نے چونکہ ہماری امداد کی ہے، تو اسی لیے ان لیو آف دیئر سروسز ٹو دی راج، انہوں نے یہاں پہ جو انہوں نے اور جگہوں میں بہت بات نے کیا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کی، اور 2 ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو بالکل انہوں نے جیسے ہی 1857 کے مسئلوں سے انہیں نجات ملی انہوں نے اسٹیبلش کی، جس میں ایک ایچیسن کالج لاہور اور دوسرا آپ کا لارنس کالج گوڑا گلی ہے۔ تو مجھے فخر ہے آپ لوگوں نے عزت دی کہ اس کالج سے ہوں، جو تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اس کی اپنی ایک قدر ہمارے ذہنوں میں اس لیے ہے۔ رات کو میں احمد یار مجھے گھما پھرا رہا تھا، آپ کا دوسرا بلاک غالباً اس سائڈ پہ ہے، لیفٹیننٹ جنرل مائیکل اوڈوائر انہوں نے اس کا افتتاح کیا ہے، جو پنجاب کے گورنر رہ چکے ہیں، اور ان پہ میرا تھوڑا سا ایک اور حوالے سے کام ہے۔ تو مجھے اچھا لگا کہ ان جن چیزوں کے متعلق ہم سنتے تھے آج اس میں خود ہوں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو اٹ از ریئلی کائنڈ آف یو سر۔ پھر اسی طرف آ رہا ہوں۔ 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہوئی، بہت سارے اسباب تھے، لیکن مسلمانوں چونکہ وہی پدر میں سلطان بھوت والا مسئلہ چل رہا تھا کہ ہماری حکمرانی، حالانکہ 1803 سے آنورڈز ان کی حکمرانی کہاں تھی؟ جو مغل شہنشاہ تھے ان کی بادشاہی صرف ان کے محل تک تھی، اور یہ فارسی کی کہاوت ایک بہت مشہور ہے
शाह आलम वर्ल्ड एम्परर, शाह आलम फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है वर्ल्ड एम्परर, यानी दुनिया जहान का बादशाह। शाह आलम बादशाह था लेटर मुगल्स में, तो उसके मुतल्लिक है बादशाही शाह आलम अज दिदिता पलम अस्त, यानी बादशाही जो है शाह आलम की वो दिल्ली से पालम तक है। पालम जो है वो दिल्ली का पार्ट है और वहां पे इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो वो हाल था, लेकिन बहरहाल हम उसकी तरफ तो नहीं देख रहे थे और ये देख रहे थे कि चूंकि हमने यहाँ पे हुक्मरानी की है, हम नए हुक्मरानों को कैसे कबूल करें, और टेंशन थी। तो इतने में जहां आपने यहाँ पे और तस्वीरें दिखाई, तो वहां पे जाहिर है जो रिफॉर्मर होता है उस रिफॉर्मर की अपने वक्त में भरपूर मुखालिफत की होती है। सर सैयद अहमद खान, उन जैसे लोग जो कौम के वाकई गमख्वार थे, उन्हें ये फिक्र थी कि अगर इसी तरह हाल चलता रहा तो वैसे भी और कम्युनिटीज जो हैं वो हमसे काफी आगे हैं और हम कहां चले जाएंगे। तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पे इंसिस्टेंस की और बहुत सारे लोगों ने, किसी ने उनको मुर्तद बना दिया, किसी ने उनको काफिर बना दिया, लेकिन उनका जो मराम था, उनका जो मकसद था और उन्होंने जो अपना ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ था वो बिल्कुल उसी पे रहे। और देखें अलीगढ़ स्कूल कितने मुख्तलिफ, कभी गाजीपुर से उन्होंने ये सफर शुरू किया, कभी अलीगढ़ में आज जो यूनिवर्सिटी है उनके जमाने में कॉलेज के तौर पे सामने आई। असल बात ये नहीं थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना तो शायद और लोग भी कर लेते, जो उनका एम था, जो उनका मुद्दा था वो यही था कि दरमियान में जो गैप है ये मैं किसी न किसी तरीके से इसको कम करूं। तंजीम थी, वो आए, उन्होंने कायद-ए-आज़म जिन्ना से रिक्वेस्ट की कि चूंकि आप भी शिया हैं, हम भी शिया हैं, तो हमने यहाँ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 2 दिन बाद आप उसकी सदारत करें। ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज रिप्लाई। उन्होंने कहा कि मैं इस पर बिलीव ही नहीं करता कि ये तुमने कितने फिरके बनाए हुए हैं कि ये सुन्नी है, मैं सिर्फ सिंपली मुसलमान हूं। अगर मुसलमानों के लिए कोई इस तरह का एक वो है, मैं उसमें जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं फिरकाबाजी नहीं करता। ये आदमी 1920 ऑनवर्ड्स 47 तक हिंदुस्तान के उफक पर इस तरह छाया रहा कि जहां मुसलमानों की हुकूक की बात होती है वहां आप चाहे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से उसे जाने, चाहे कायद-ए-आज़म कहें, आप उसके बगैर नहीं चल सकते। मुख्तलिफ वफूद आए, साइमन कमीशन आया, नेहरू प्रपोजल्स हैं, कायद-ए-आज़म के 14 नुकात हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। वो भी शायर जो बना बाद में अल्लामा मोहम्मद इकबाल, वो इतना बड़ा और इतना एक जामिया और एक सलीस अंदाज से अपनी एक प्रपोजल जो है हिंदुस्तान के मुस्तकबिल तकसीम के लिए पेश कर रहा है, लेकिन देखें उसको इतनी पजीराई उस वक्त नहीं हुई जितनी 1937 के बाद की हुई है। वो क्या वजह थी? फैक्शनलिज्म थी, बहुत ज्यादा फैक्शनलिज्म मुसलमानों की आपस में। इसी तरह चंद साल मजीद गुजर गए, 36-37 इलेक्शंस की बात होती है। पहली दफा हिंदुस्तान में कौमी इलेक्शंस होते हैं। मुस्लिम लीग एज अ पार्टी अब उभर तो आई थी। मैं एक चीज का जिक्र करना भूल गया। ये 1930 खुतबा इलाहाबाद के बाद मुख्तलिफ स्कीमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से सामने आई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ मुसलमान स्टूडेंट्स थे, उन्होंने खैबर यूनियन लंदन के नाम से अपनी एक यूनियन बनाई हुई थी। जो ज्यादा वोकल थे उसमें असलम खटक, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके थे, करक के थे, फिर इनायतुल्लाह, फिर साहबजादा एक मंगलोर, इस तरह नाम है कोई, नॉर्थ इंडिया में एक छोटी सी रियासत थी, उसका था साहबजादा इदरीस ऑफ मंगरोल, और चौधरी रहमत अली। इन लोगों ने एक पंफलेट बना के तकसीम किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसको भी पसीराई नहीं मिली। पंफलेट का नाम नाउ और नेवर। उसमें भी यही कहा गया कि हिंदुस्तान की तकसीम ही जो है फसादात और इस तरह के मसलों का हल है। फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 2 भाई थे, खैरी ब्रदर्स के नाम से, बड़ा भाई लतीफ खैरी, वो खैरी ब्रदर्स के नाम से एक और तकसीम हिंद का पंफलेट आया, लेकिन कोई इस तरह वो चीज
जामे तरीके से नजर आ नहीं रही थी। 36-37 के इलेक्शंस होते हैं, मुस्लिम लीग ने एज अ पार्टी फुल फ्लेज उस इलेक्शन में हिस्सा लिया, ऑर्गेनाइज ज्यादा नहीं थी, इलेक्शन का नतीजा कुछ बहुत अच्छा नहीं आया। मैं आपको सिर्फ पंजाब की मिसाल दूंगा, 75 मुस्लिम सीट्स थी, उसमें से मुस्लिम लीग ने सिर्फ 2 सीटें दी, एक पे पिंड दादर खान जेहलम के राजा गजनफर अली और दूसरे पे लाहौर के मलिक बरकत अली। फिर यूनियनिस्ट मजिस्ट्री जब बनी तो राजा गजनफर अली ने यूनियनिस्ट ज्वाइन कर ली, तो मलिक बरकत अली ही वॉज द सोल वॉइस ऑफ मुस्लिम लीग इन पंजाब असेंबली। नॉर्थ इंडिया यूपी में कायद आजम जिन्ना ही मेट विद कांग्रेस लीडर जवाहरलाल और उनसे नेगोशिएशंस कर रहे थे टू एकोमोडेट सम ऑफ द मुस्लिम लीग मेंबर्स इन द यूपी मिनिस्ट्री। कांग्रेस लीडरशिप वाज वेरी एरोगेंट, दे ऑफर्ड ओनली 1 सीट। कायद आजम जिन्ना की ख्वाहिश थी कि नवाब मोहम्मद इस्माइल और चौधरी खलीकुज्जमान इन दोनों को कैबिनेट में हिस्सा मिल जाए, बट जवाहरलाल ही रिफ्यूज्ड। उसने यही कहा कि हम आपको 1 सीट तो दे सकते हैं, 2 नहीं। कांग्रेस ने एक प्रोग्राम शुरू किया, मुस्लिम मास कांटेक्ट प्रोग्राम, जिसमें उनका ख्याल था कि हम डायरेक्ट हर मुसलमान सूबे में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। 3 साल का प्रीमियर था जिसने लाहौर रेजोल्यूशन में कलीदी किरदार अदा किया, और आसाम के सर सादुल्ला, उनको यही लगा कि हमें अब किसी एक प्लेटफॉर्म पे आकर कांग्रेस को काउंटर करना है। वो एक प्लेटफॉर्म इन्हें मुस्लिम लीग की सूरत में मिला और कायद आजम जिन्ना को उन्होंने अपना मुश्तरका लीडर बनाया। लखनऊ सेशन हुआ दिसंबर 37 में। अब कायद आजम जिन्ना ही वॉज अ टोटली चेंज्ड मैन, ही चैलेंज्ड द कांग्रेस फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि बिहाइंड हिम वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ 3 मुस्लिम प्रीमियर्स। उसके बाद बहुत सारी चीजें उनके लिए आसान हो गई, जिसमें इसी तरह का ये इजलास जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, लाहौर वाला इजलास मुस्लिम लीग का, 3 दिन पहले एक और बहुत बड़ा हादसा लाहौर में हो चुका था। यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी सर सिकंदर हयात की, उन्होंने खाकसार तहरीक पे उन्होंने जुलूस निकाला, जुलूस वगैरह बैन थे सेक्शन 144 के तहत, दे डिफाइड द अथॉरिटी, उन्होंने फायर किया। 35 खाकसार्स दे वर किल्ड इन लाहौर। वो काफी उस वक्त भी जो इंसिडेंट था, बहुत अगली इंसिडेंट था, लाहौर की फजा काफी सोगवार थी और उस वक्त यही एडवाइस दी जा रही थी बार बार कायद आजम जिन्ना को कि आप मुस्लिम लीग का ये इजलास जो है पोस्टपोन करें, क्योंकि खाकसार जो है दे आर इन वेरी एग्रेसिव मूड और वो ऐसा ना हो कि ये डिस्टर्ब करें। बट डिस्पाइट ऑल दोज वार्निंग, डिस्पाइट ऑल दोज ओड्स, मैंने पहले कहा कि ही वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। जब किसी चीज पे कन्विंस हो जाते थे कि ये चीज सही है तो वो फिर करनी है, ही डिसाइडेड, उन्होंने की। और जिस तरह यहां पे आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा और वाकई वो हुआ, जो चीज 50 साल में क्लियर नहीं हो रही थी वो अब 7 साल में अचीव करना आसान हो गया, क्योंकि अब मुसलमानों के पास एक टारगेट आ गया था। अब उनके पास होमलैंड का एक कंप्लीट तस्वर आ चुका था और अब उनको अपनी मंजिल एक बनानी पड़ी, एक मंजिल पे काम करना उनके लिए आसान हो गया था। तो इसीलिए जितनी भी वो पहले वाली स्कीमें थी या खैरी ब्रदर्स हैं, वो आकर कायद आजम जिन्ना से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब हमारा और आपका तो मकसद एक ही है, तो हम अपने उस स्कीम को इसी में मर्ज करते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, अब तो इसके बाद मजीद चीजों की बात ही नहीं रही और पाकिस्तान मूवमेंट अपने आखिरी मराहिल, वाकई ये 7 साल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भी गुजरी, लेकिन मुल्क जो है हिंदुस्तान तकसीम हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। जहां पाकिस्तान बना, नई जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी, रिसोर्सेज नाकाफी थे, फिर
वही पंजाब जो अमन का गहवारा समझा जाता था, जहां मियां फजल हुसैन यूनियनिज्म पार्टी के बानी, वो हर वक्त कहते थे कि हमारी क्रॉस कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमने इस मुल्क को यहाँ पे हमने इतना काम किया है कि ये वाकई एक पुरअमन सरजमीन है। उस पुरअमन सरजमीन में बदकिस्मती से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने जो है यहाँ इतना खून बहाया गया कि बगैर किसी एक्सेजरेशन के कुछ आई विटनेस अकाउंट इस तरह है